चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम पूरे फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आउटर मोशन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब कुछ सबके बारे में थोड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और इस चैप्टर में याद करने का पार्ट भी ज़्यादा है। आई मीन क्वेश्चन इधर से बनता है और आपको रिमेंबर रखने के लिए बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में है ना, तो प्लीज़ ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए, के इसाऊ वॉज बॉर्न इन कैथरीन इसाऊ को बैबिस्टर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी बोलते हैं। ये इस पूरे साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन का वो है ना, ठीक है ना। इन्होंने सॉरी नॉट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बोल दिया, ठीक है ना। यूक्रेन में बॉर्न हुई थी ये। इन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी किया था रसिया और जर्मनी में। कहाँ रशिया और जर्मनी में। एंड रिसीव्ड हर डॉक्टरेट इन 1931 में, और ये फिर डॉक्टर बन गई थी, डॉक्टरेट, राइट। सी रिपोर्टेड हर इन अर्ली publications that the curly up top virus spreads through a plant via food conducting or phloem tissue. Dr. Ishao, Plant Anatomy, published in 1954, took a dynamic developmental approach designed to enhance one's understanding of plant structure and an enormous impact worldwide. द एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स जो बुक है वो कैथरीन साउ ने ही दी थी, जो कि 1960 में पब्लिश हो गई थी, ठीक है ना। इसलिए इनको बैबिस्टर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी बोलते हैं। और ठीक है ना, इनके बारे में बस इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़, मिसूरी botanical garden remembered that C absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99, right. चलिए स्टार्ट करते हैं। Morphology of flowering plants. The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us, even though the angiosperms show such a large diversity in external structure or morphology. They are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers, and fruits. In chapter 2nd and 3rd, we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definitions. We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptations of the plant of their environment, adaptation to various for habitats for food, for protection, climbing, storage, and etc. If you pull out any weed, you will see that all of them have roots, stems, and leaves. They may be bearing flowers and fruits in them along with that, right. The underground part of flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system. जो shoot system forms करता है उसको बोलते हैं plumule, और जो root system उसको बोलते हैं radical. The root, चलिए बात करते हैं root के बारे में। In majority of dicot plant, direct elongation of the radical leads to the formation of primary root, which grows inside the soil. It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. The primary roots and its branches constitute the taproot system. Primary roots और उनकी branches क्या form करती हैं? Taproot system, right. As seen in the mustard plant, जो कि mustard plant में पाई जाती हैं taproots, right. अच्छा, taproots जनरली जिम्नोस्पर्म्स में भी देखी जाती हैं, ये मैंने सेकेंड चैप्टर में बताया आपको,
In monocot plant, the primary root is short-lived and replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of stem and constitute the fibrous root system. Mainly fibrous roots monocots में पाई जाती हैं और dicots में taproot system. ठीक है ना. As seen in wheat plant, ये fibrous root wheat plant में देखने को मिलती है. wheat एक monocot है, right? In some plants like grasses, monstera, and the banyan tree, roots arise from parts of the plant other than radicle. Other than radicle अगर कोई और part से arise होती है उसको बोलते हैं adventitious roots. The main function of the root system are absorption of water and minerals from the soil, providing a proper anchorage to the plant's parts, स्टोरिंग इज अ फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. अच्छा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी सिंथेसिस रूट्स में, जैसे कि इथाइलिन हो गया आपका, है ना, C6H6, इसका प्रोडक्शन रूट्स में ही होता है. ठीक है ना, रूट्स ही बनाती हैं इसको. ये डायग्राम होगा आपके टैप रूट सिस्टम का, हो गया ये, और फाइबरस का, ये एडवेंटिशियस का. ठीक है ना, विदा कोई भी रेडिकल वाले पार्ट्स के अलावा या फिर रूट्स के अलावा कहीं और से रूट रेडिकल के अलावा कहीं से निकलते हैं उसको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं. राइट. Regions of the root. The root is covered at the apex by a thimble-like structure called the root cap. It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डिवीजन की कैपेसिटी होती है, वहीं से डिवीजन होता है एक्चुअली. राइट. सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल. जो सेल्स इस रीजन की वो बहुत स्मॉल होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म में बताया था ना होता है इनमें डेंस, क्योंकि इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है, वो डिवाइड करते रहते हैं रिपीटेडली. द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन. इसको बोल देते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन. क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ एलोंगेशन. अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंथ जो इंक्रीज होती है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है रीजन ऑफ एलोंगेशन में ही. ठीक है ना. उसके बाद बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. तो अगर हम बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की, तो रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन. किसी में एब्जॉर्प्शन के अलावा भी अदर फंक्शन होते हैं, जैसे कि कंडक्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स. ठीक है ना, जो कि जाइलम मेनली कराता है, फूड का फ्लोएम मेनली कराता है. ठीक है ना. हाँ, तो वो भी डिपेंड करता है. ठीक है ना. एंड उसके बाद एंड जाइलम एंड एनवायरनमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट एंड लेंथ. ये रीजन ऑफ एलोंगेशन की बात हो गई. ठीक है. दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ एलोंगेशन. The cells of elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to region of elongation is called region of maturation. From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called root hairs. These root hairs absorb water and minerals from the soil. Right. Next बात करते हैं modifications की root के. Sorry. Yes, they are modified for support storage of food. ठीक है ना, जैसे कि storage of food respiration. Tap roots of carrot, turnip, adventitious root of sweet potato get soil and store food. They get soil and store food. Can you give some such examples? Have you ever wondered what those hanging structures that support banyan tree are? These are called prop roots or pillar roots. Similarly, the stems of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. सपोर्टिंग रूट्स जो कि लोअर नोड से स्टेम्स के राइज होती हैं. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट्स. कहाँ से राइज होते हैं? फ्रॉम कमिंग आउट फ्रॉम ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ स्टेम. In some plants, such as Rhizopora, growing in swampy areas, many roots come out of the ground and grows vertically upward. इनको pneumatophores कहते हैं. They help in respiration, ऑक्सीजन की लिए ये प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन को. राइट. ये है डायग्राम, देखो pneumatophores का.
चलिए, ये टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो और ये एस्पारेगस, डहलिया एंड एस्पारेगस भी आपके इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं ना, है ना। चलिए, वही मॉडिफिकेशंस होते हैं स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। स्टेम की बात करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट? द स्टेम इज द ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. It develops from the plumule of the embryo of germinating seed. The stem bears nodes and internodes. The region of the stem where leaves are born are called nodes. वो रीजन स्टेम का जहाँ पे लीव्स अराइज होते हैं उसको क्या बोल देते हैं? नोड्स। और इंटरनोड्स जो गैप्स होते हैं, पोर्शन होते हैं बिटवीन द टू नोड्स। अच्छा, इसलिए जो इंटरनोड की लेंथ होती है वो कौन सी मेरिस्टेम इंक्रीज करती है? वो करती है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी, इसलिए वही वो नोड्स पे ही प्रेजेंट होती है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। द स्टेम बियर्स buds which may be terminal or axillary. Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. The main function of the stem is spreading out branches, bearing leaves, flowers, and fruits. It conducts water, minerals, and photosynthesis. Some stems perform the function of storage of food, support, protection, and of vegetative propagation. Modifications of stem. The stem may not always be typically like what they are expected to be. They are modified to perform different functions. Underground stems of potatoes, ginger, turmeric, zamican, colocasia are modified to store food in them. They also act as organs of perennation to tide over conditions unfavorable for growth. Stem tendrils, which develop from axillary buds, are slender and spirally coiled and help plants to climb, such as in gourds, कोकुम्बर में हो गया, पम्पकिन, वाटरमेलन और ग्रेप माइंस। इन सब में टेंडल स्टेम टेंडल्स होती है। कोकुम्बर में, पम्पकिन में, वाटरमेलन में और ग्रेप वाइन्स में कैसी होती है? स्टेम टेंडल्स प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Axillary buds of stems may also get modified into woody, straight and pointed thorns. जो एक्सिलरी बर्ड है स्टेम्स की, वो वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न्स में भी डिवाइडेड हो सकती हैं। थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स सच एज साइट्रस एंड बोगनविलिया। थॉर्न्स हैं वो साइट्रस और बोगनविलिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। They protect plants from browsing other animals. Some plants of arid regions modified their stems into flattened structure called opuntia और fleshy cylindrical as in euphorbia। ठीक है, इधर पे फोटोसिंथेसिस करते हैं फिर। फ्लैटेंड फ्लैटेंड ओपनसिया में एंड फ्लैसी सिलिंड्रिकल यूफोर्बिया में। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये कुछ डायग्राम्स हैं इनके। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू नाइकेस। नाइकेस का मतलब आपको मैं इकोलॉजी में बहुत अच्छे से बताऊंगा बट 12th में, तो आप अभी कुछ ऐसा समझ लीजिए। नाइकेस का मतलब नया एडेप्टेशन उनमें आ जाता है। व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई, न्यू फंक्शनल या फिर वो कुछ आ जाते हैं उनमें, ऐसे समझ लीजिए। व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई, न्यू प्लांट्स अराइज, सॉरी न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड, हाँ सही बात है, अराइज इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मीन। A cylinder lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc downwards and touch to the ground downwards to touch the ground. A lateral branch with short internodes and each node is bearing rosette of leaves and tuft of roots. Rosette of leaves and tuft of roots is found in aquatic plants like Pistia and Eichhornia. Chili. In banana, pineapple, and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil, and come out obliquely upward, giving rise to leafy shoots. The leaf is lateral, generally flattened structure borne on the stem. It develops at the node, bears a bud in its axil. एक एक्सेल, लीफ का एक एक्सेल होता है, ये देखिए आप, ये इससे स्टेम से, ये नोड का पार्ट से लीफ निकली हुई है आपकी, ठीक है ना।
अब ये जो आपका ये जो लीफ से ये एंगल बना रही लीफ जितने पर ये झुकी हुई है उसको बोलते हैं एक्सेल, उस पार्ट को, ठीक है ना। द एक्सिलरी बट लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांच, लेटरली ये ब्रांच फॉर्म करती है, ठीक है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज इन एक्रोपीटल ऑर्डर। कैसे ऑर्डर में अरेंज होती हैं? एक्रोपीटल में। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव organs for photosynthesis. Most important organs for photosynthesis. A typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole, and lamina. Leaf is attached to the stem by a leaf base and may and they may bear two lateral small leaf-like structure called stipules. Stipules are, ये देख सकते हैं हम डायग्राम स्टिप्यूल्स को, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है ना, जो कि एयर वगैरह जब होती है तो लीफ ब्रोकन ना हो स्टेम से और उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट। इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपांड्स इनटू अ sheath covering the stem or partially or fully. In some leguminous plants, the leaf base may be swollen, which is called the pulvinus. The petiole help hold the blade to light. Long, thin, flexible petiole allow leaf blades to flutter and bind. इसकी वजह से कूलिंग भी होती है और पॉलिनेशन में भी हेल्प हो जाती है, फ्रेश एयर भी मिल जाती है लीफ को, सरफेस को। लेमिन और लीफ ब्लेड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है containing veins and veinlets. There is usually a middle prominent vein which is known as the midrib, ठीक है ना। veins provide rigidity to the leaf blade and act as channels of transport for water, minerals and food materials. The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. अलग अलग leaves में अलग अलग होता है ये भी, ठीक है। Venation. Veins provide rigidity to the leaf blade or the lamina and act as channels of transport of water, minerals and food material. अच्छा, क्या होता है जैसे ही जाइलम फ्लोएम के थ्रू वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल्स आते हैं, वो सीधा कहाँ, स्टेम से कहाँ जाते हैं? वीनलेट्स या फिर वीन्स में जाते हैं, उसके बाद लीफ की वीन्स में जाते हैं, ठीक है ना। तो वो भी इन्हीं के थ्रू होता है। सेप हो गया, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स, वो अलग अलग होता है, ठीक ना। Venation means arrangement of veins and veinlets in a lamina of leaf is termed as venation. When the veinlets form a network of the venation is termed as reticulate. जब एक नेटवर्क फॉर्म हो तो उसको क्या ऐसा बोलते हैं? रेटिकुलेट। और जब एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट हो तो उस वेनेशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल। लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स जनरली possesses रेटिकुलेट वेनेशन। डाइकॉट्स में जनरली रेटिकुलेट होता है, पैरेलल वेनेशन जनरली मोनोकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। टाइप्स ऑफ लीव्स, मेनली दो टाइप्स की लीव्स दी गई हैं, सिंपल, कंपाउंड। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स lamina is entire or when incised. The incisions do not touch the midrib. When the incisions of the lamina reach up the midrib, breaking it into number of leaflets, and the leaf is called compound. A bud is present in the axil of petiole. Axil of petiole बताया था ना। पेटियोल क्या है? अच्छा, पेटियोल वो पार्ट है जहाँ से लीफ पूरा कनेक्टेड होता है, ये हो गया आपका पेटियोल, राइट। इससे पूरा कनेक्टेड है, पेटियोल होता है ये, ठीक है ना। और ये जो लीफ के बीच में, पेटियोल लीफ के बीच में जो एंगल बन रहा है ये क्या हो गया आपका? हर एक पर्टिकुलर लीफ के लिए उसको बोलते हैं एक्सेल ऑफ बड, ठीक है ना। and in both simple and compound but not in the axil of leaflets of the compound leaf. कंपाउंड लीफ की एक्सेल में बड प्रेजेंट नहीं होती है, आप इसमें देख भी सकते हैं स्ट्रक्चर में। सिल्क कॉटन के, ये नीम का हो गया। पाइनेटली कंपाउंड लीफ का कॉमन एक्सिस में होती है, रैकेस होता है उनमें, ठीक है, डिवाइडेड होती हैं, उसको बोलते हैं जिसमें मिडरेब रिप्रेजेंट करती है लीफ को, उस एग्जाम्पल नीम हो गया। और पामेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स आर अटैच टू द कॉमन पॉइंट में अटैच होती है जाके, एंड इसका एग्जांपल सिल्क कॉटन हो गया, ठीक है। फाइलोटेक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच।
दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स का हम देखेंगे फाइलोटैक्सी: alternate, opposite and world. Alternate type phyllotaxy leaf arises at each node in alternate manner. ये देख सकते हैं आप एग्जांपल चाइना रोज की जो लीफ है, राइट, ये ऐसा ही है। गुआवा हो गया, ये कैसा है, अपोजिट है। अल्स्टोनिया हो गया, ये वॉर्ल है। एक साथ बहुत सारी लीफ अराइज हो रही हैं, ठीक है ना। चलिए इसकी एक ट्रिक है याद करने की, एग्जांपल MSC। कैसा MSC? मस्टर्ड, एस से सनफ्लावर एंड सी से चाइना रोज। अपोजिट में GOC है लीफ, टू पेयर अपोजिट हो रही है राइट। GOC इन द सेंस गुआवा हो गया, O से अपोजिट एंड C से कैलोट्रोपिस। और वर्ल में राइजेस एट नोड टू फॉर्म वर्ल्ड मोर देन टू लीव्स, इसको वर्ल्ड। इसके एग्जांपल दो हैं NA। तो MSC में GOC नहीं, NA मीन्स नीरियम एक होता है, एक अल्स्टोनिया, ठीक है ना। नीरियम भी इंपॉर्टेंट याद रखना। Modifications of leaves. Leaves are often modified to perform function other than photosynthesis. They are converted into tendrils for climbing, as in peas, or into spines for defense, as in cactus. The fleshy leaves of onion and garlic store food. In some plants such as Australian Acacia, the leaves are small and short-lived. तो जो पेटियोल्स होती हैं ये एक्सपांड होके फूड का सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करती हैं, सिंथेसाइज फूड। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी मॉडिफाइड होती हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे कि पिचर प्लांट्स हो गया और वीनस फ्लाई ट्रैप। इन्फ्लोरेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स हो गया, ठीक है। सूट, फ्लावर का होता है एक मॉडिफाइड सूट होता है, सूट को मॉडिफाई कर देते हैं, फ्लावर बन जाता है। वेर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। इंटरनोड्स डू नॉट एलोंगेट एंड द एक्सेस गेट्स कंडेंस्ड। इंटरनोड्स एलोंगेट नहीं होती बट जो एक्सेस है वो कंडेंस हो जाती हैं। अपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लिटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टीड ऑफ लीव्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस दिखेंगे आपको, कैसा एक में अलग टाइप से, तो एक में ग्रोप, तो एक में पॉइंटेड लीव्स, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की है ना। व्हेन अ shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. It is always solitary means it's single, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, इसको ही इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं हम, ठीक है। एंड depending on whether the apex gets developed into a flower or continues to grow. टू मेजर टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं। एक तो रेसमोस, ठीक है, जिसमें मेन एक्सिस कंटिन्यू होती है, ग्रो होती है, और लेटरली एक्रोपीटल सक्सेशन होता है इसमें। एक्रोपीटल मतलब कैसा, ये देखिए डायग्राम में एक बार, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है। एक्रोपीटल मीन्स ये पहले नीचे से अराइज हुई, ये देखो ये स्टेम से अराइज हुई आपकी लीव्स, उसके बाद बड्स अराइज हुई, उसमें लीव्स आई, लीव्स के बाद ऊपर जाते जाते तो एक पर्टिकुलर उस तक ही होगी। रेसमोज में मतलब एक ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर तक उस पर आके रुक जाए, इसमें होते रहेगी, आगे ऊपर बढ़ते रहेगी, एंड ऐसे स्टेम से अराइज होते जाएंगे बर्ड्स, और उसमें फ्लावर्स या लीव्स आते जाएंगे। और ये होता है एक्रोपीटल सक्सेशन। अगर साइमोज में बात करें तो साइमोज में ऐसा नहीं होता है, टर्मिनेट हो जाती है पॉइंट पे आके, इस पर रुक गई, अब इधर पे जितना होगा अगर उतना होगा बस, इसको साइमोज बोलते हैं। उसको बोलते हैं बेसिपीटल सक्सेशन, बेसिपीटल ऑर्डर में होती है ना पूरा, बेसिपीटल बोलते हैं इसको। तो इसमें रेसमोज में एक्रोपीटल, साइमोज में बेसिपीटल, राइट। ये देखिए, चलिए बात करते हैं फ्लावर की, ठीक है। लिमिटेड ग्रोथ होती है मेन एक्सिस में, टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर टर्मिनेट्स इन मेन एक्सिस। चलिए बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, ठीक है। It is meant for sexual reproduction. A typical flower has four kinds of different whorls arranged successively on the soilen end of the stalk or pedicel, कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। पेडिकल्स का जो पेडिसल का मॉडिफिकेशन होता है उसको थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो एप्पल होता है अपना फ्रूट, उसमें जो भी अपन ईटिंग जो अपन उसमें खाते हैं वो थैलेमस से ही है, वो थैलेमस से ही अराइज हुआ है पूरा, इसलिए उसको अपन फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। These are कॉलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। अच्छा, एंड्रोसियम और गायनोसियम तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, लेकिन कॉलेक्स और कोरोला ये नेसेसरी नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, लेकिन
एंड्रोसियम और जिम्नोस्पर्म्स नेसेसरी हैं बिकॉज ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, राइट। चलिए, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। आर्ट जब इनको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो उनको पेरियंथ कंडीशन बोल देते हैं, जब हम कॉलिक्स और कोरोला में डिफाइन नहीं कर पाते हैं। सेपल्स का ग्रुप कॉलिक्स और पेटल का ग्रुप कोरोला, ठीक है। ये जनरली लिली में देखा जाता है, ठीक है ना। लिलियेशी फैमिली में नहीं, लिली में देखा जाता है। When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual। और अगर इनमें से एक ही है ओनली, या तो स्टेमन या तो कार्पल, तो यूनिसेक्सुअल, ठीक है। In symmetry, the flower may be actinomorphic. Actinomorphic means radial symmetry. Zygomorphic means bilateral symmetry. When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic। ठीक है, जब इक्वली उसमें डिवाइड हो रहे हों, ठीक है, सेंटर से रेडियल प्लेन पास हो रहा हो और हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। ये कंडीशन पाई जाती है मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली में। इसका याद करने की ट्रिक है ABCD। ए से एक्टिनोमॉर्फिक, बी से ब्रेसिका, मस्टर्ड को ब्रेसिका भी बोल देते हैं, एंड सी से चिली एंड डी से दतूरा। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, इट इज़ जाइगोमॉर्फिक। इसका एग्जांपल है पबजी कैसे खेलोगे, पबजी कैसे खेलोगे। अब फ्लावर इज एसिमेट्रिक, इसका एग्जांपल याद रखना सिंपल है। इरेगुलर मतलब इनको हम सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते। इसका एग्जांपल सिंपल है करना, राइट। A flower may be trimerous, tetramerous और pentamerous। ट्राइमेरस कंडीशन जनरली मोनोकॉट्स में देखी जाती है, सॉरी मोनोकॉट्स में, हाँ मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स में टेट्रामेरस या पेंटामेरस कंडीशन देखी जाती है। फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट्स रेड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिशियल। अच्छा, ब्रैक्ट एक ग्रुप होता है फ्लावर्स का, एक मतलब ग्रुप बोल देते, गुच्छा को ब्रैक्ट बोल देते हैं। अगर इनमें किसी में भी ब्रैक्ट है किसी फ्लावर में तो उसको ब्रैक्टेड बोलेंगे, जिसमें नहीं उसको ई ब्रैक्टेड, राइट। इसके बाद बात करते हैं, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, corolla and androecium in respect of the ovary on thalamus, the flowers are described as hypogynous। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दस क्वेश्चन देखने को मिलता है कई बार, राइट। कैसे देखेंगे इसको, ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है डायग्राम, ये पहला वाला, ठीक है ना, ये आपका हाइपोगाइनस कंडीशन है। हाइपोगाइनस मीन्स बिलो ओवेरी, हाइपो मीन्स बिलो मान लेना, और गाइनस मीन्स ओवेरी, मतलब जो भी अदर पार्ट्स हैं ओवेरी को छोड़ के फ्लावर के, वो सारे हाइपोगाइनस होंगे, मतलब ओवरी के नीचे से राइज होंगे। ये कंडीशन है, बी वाला शो कर रहा है पेरीगाइनस, ठीक है, मिडल से, और ए बी इन, इसको हाफ इन्फीरियर बोल देते हैं ओवरी को, ठीक है ना, सॉरी इस कंडीशन में है ना, पेरीगाइनसिस में। एंड ये है एपिगाइनस। एपिगाइनस मीन्स अबव ओवेरी, गाइनस मीन्स ओवेरी, सारे पार्ट्स ओवरी के ऊपर से राइज हो रहे होंगे, ये देखिए ना साइड से, ठीक है। चलिए, in hypogynous flower the gynoecium occupies the highest position, ठीक है, while other parts are situated below it। the ovary in such flowers is said to be superior। ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर ओवरी होती है इनमें, ठीक है। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल एग्जांपल है, याद रखना है डायरेक्ट MCB। mustard, China rose, brinjal। If gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called perigynous। perigynous में सेम लेवल पे होते हैं, ओवेरी यहाँ पे हाफ इंफीरियर बोलते हैं। एग्जाम्पल प्लम, पीच, रोज, ठीक है। एपिगाइनस, अब मेनली सबसे ज़्यादा एपिगाइनस एग्जाम्पल है, इनको छोड़ के जितने भी बचे सारे एपिगाइनस के हो जाएंगे। The margin of the thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of the flower arise above the ovary. Hence, the ovary is said to be inferior, as in flowers of guava, cucumber, and the ray florets of sunflower। ये भी याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि एनसीईआरटी का PDF में दिए हुए हैं, तो वो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, एंड वो PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, एक एक के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट wall of the flower and the members are called sepals। Generally, sepals are green leaf-like and
protect the flower in the bud stage. The calyx में भी gamosepalous मतलब सेपल जिसमें यूनाइटेड होते हैं, और पॉलीसेपैलस, गैमो मीन्स फ्यूज्ड मान लो, ठीक है ना, यूनाइटेड सेपल है, पॉली में अलग अलग होते हैं, सेपल्स आर फ्री. Corolla is composed of petals. Petals are usually brightly colored to attract insect for pollination. Pollination बहुत help करते हैं. Different color के होते हैं ये. Like calyx, corolla may also be gamopetalous, means ये भी united हो सकते हैं, और polypetalous means petals जिसमें free होंगे. The shape and color of corolla vary greatly in plants. Corolla may be tubular, bell-shaped, funnel-shaped और wheel-shaped. बेल शेप्ड इसमें देखा, ब्रिंजल में देखा जाता है, ठीक है ना, ट्यूबुलर अलग अलग में ऐसे उसमें पाए जाते हैं अपने. इसके बाद बात करते हैं एस्टिवेशन की. एस्टिवेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सीपल ऑफ पेटल्स इन द फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नोन एज एस्टिवेशन. यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम्पल्स का. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स और डायग्राम अच्छे से याद रखने हैं. When sepals or petals in a whorl just touch one another at the margin without overlapping, as in calotropis, ठीक है ना, it is said to be valvate estivation हो गया इनमें. If one margin of the appendage overlaps that of the next one and so on, as in China rose, ladyfinger, cotton is called twisted. इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है. अच्छा, वेलवेट एस्टिवेशन आपको फैमिलीज में देखा जाएगा, सोलेने से, लिलिएशे हो गया, सोलेने से हो गया, ठीक है ना, और ब्रेसिकेस से, इन सब में ये वेलवेट देखा जाता है. ट्विस्टेड के लिए याद करने की सिंपल ट्रिक है, चाइना लेडी को ट्विस्टेड कॉटन पसंद है. चाइना लेडी को ट्विस्टेड कॉटन पसंद है, ठीक है ना. चाइना रोज, लेडी से लेडी फिंगर, ट्विस्टेड एंड कॉटन से कॉटन, राइट. If the margins of sepal or petal overlap one another but not in any particular direction, as in cassia and glomohar, the estivation is called imbricate. और वैक्सिलरी आएगा इसके बाद, ठीक है, जिसके एग्जांपल आपको दिख जाएंगे पी एंड बीन, ठीक है. ये लार्ज, अच्छा, 5 पेटल्स का बना हुआ होता है वैक्सिलरी में. अच्छा, ये लार्जेस्ट पार्ट इसमें स्टैंडर्ड होता है, उसके विंग्स होते हैं, ठीक है, ओवरलैप करते हैं 2 लेटरल पेटल्स को. उसके बाद स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, इसको कील बोलते हैं, राइट. इसको मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा. देखो, ये जो आपका ये पार्ट है, ये मैं ऐसे सिंपल शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ, आप समझ लीजिएगा. ये स्टैंडर्ड है, एस लिख दिया मैंने, ठीक है. ये आपका, ये सॉरी, ये बीच का पार्ट है, ये विंग्स है, एंड ये सबसे नीचे स्मॉलेस्ट पार्ट दिख रहा है, ये कील है, ठीक है. ये आपको ऐसे देखना है, ठीक है ना, और इसको वैक्सिलरी बोलते हैं. अच्छा, इनका याद रखने का तरीका, पबजी कैसे खेलोगे हो जाएगा, पब से वैक्सिलरी में, और कैसे खेलोगे तो इम्ब्रिकेट, कैसिया एंड गुलमोहर, ठीक है. ये होगा, राइट, सिंपल है ये भी. चलिए, इसके बाद बात करते हैं इनके डायग्राम्स की. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, राइट. एंड्रोसियम, गायनोसियम. चलिए, एंड्रोसियम की बात करते हैं. तो एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स. एंड्रोसियम कैसे बना होता है, स्टेमन से बना हुआ होता है. ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और फिलामेंट एंड एन एंथर, ठीक है. द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक्स. ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड. एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है, 2 लोब्स होते हैं जिसमें कि, एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स, जिनको पॉलन सैक्स होते कहते हैं, और ये फ्यूज्ड होते हैं. द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक्स. जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलन सैक्स में प्रोड्यूस होते हैं. स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड. जो स्टेराइल स्टेमन होता है, जिसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं होती, उसको स्टेमिनोड बोलते हैं. Stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves. When stamens are attached to the petals, they are epipetalous, as in brinjal. जब stamen petal से attached हो, उसको क्या बोलते हैं, epipetalous, as in brinjal, और epiphyllous भी बोल देते हैं. एपीफाइलस कब, जब लिली में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए उनके बीच में, पेरियंथ कंडीशन हो, जैसे कि लिली में होता है,
ठीक है ना, एपिपेडल बिंजल में जब अटैच्ड होते हैं। द स्टेम इन फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री पॉलीएंड्रस और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज। The stamen may be united into one or one bundle called monodelphous as in China rose, two bundles as in pea, and more than two as in citrus, polydelphous condition. Monodelphous, didelphous, and polydelphous. There may be variation in length of filaments within a flower called as in salvia, mustard. ठीक है ना, दो और एग्जाम्पल हैं जो कि आ जाते हैं, वो भी याद रख लेना, वो मैं आपको जो दूसरा पीडीएफ डालूंगा उसमें होंगे। ठीक है। Gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part of the flower and is made up of more than one carpel or more carpels. A carpel consists of three parts, namely stigma, style, and ovary. Ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube, the style. The style connects the ovary to the stigma. The stigma is usually at the tip of style and is the receptive surface for pollen grain. रिसेप्ट करता है, यही मतलब पॉलन ग्रेन्स को लेके जाता है इनसाइड द ओवरी। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच्ड टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा। when more than one carpel is present they may be free as in lotus and rose एंड इसका एग्जांपल में माइकेलिया भी हो जाता है, एपोकार्पस कंडीशन होती है, सिनकार्पस कंडीशन में आपको देखने में मस्टर्ड एंड टोमेटो में। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल हैं, है ना, एक दो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो भी पीडीएफ में होंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवेरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। इसलिए बोले थे ना इसमें याद करने का बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में, सिर्फ वही है। प्लासेंटेशन द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवेरीज नोन एज प्लासेंटेशन। अरेंजमेंट, जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है ओवेरी के अंदर, उसको बोलते हैं प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन दो टाइप का होता है, मेनली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दो नहीं सॉरी, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। मार्जिनल प्लासेंटेशन एक रिज फॉर्म करता है अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवेरी। ये देखिए डायग्राम से बता देता हूँ पहले आपको सारे। मार्जिनल में ये हो गया मार्जिनल आपका, ठीक है। ये उसके बाद हो गया आपका एक्साइल। एक्साइल में क्या हो रहा है, ये देखिए, ये जो इसको, ये जो आप ये देख पा रहे हैं बीच में, इसको बोलते हैं इट्स मतलब एक वो हो डाल देते हैं उसको अपन रिज ही बोलते हैं ना, रिज ही बोलते हैं, मतलब एक एक्साइल कंडीशन में। अच्छा, CLT इसका चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो ये ट्रिक है। पैराइटल होता है जिसमें ओवल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ द ओवेरी, और द पेरिफेरल पार्ट में जब डेवलप होते हैं ओवल्स उसको बोलते हैं पैराइटल। ठीक है। ओवेरी वन चैम्बर्ड होती है लेकिन टू चैम्बर्ड हो जाती है ड्यू टू, अच्छा सेप्टम, हाँ सॉरी सेप्टम मतलब डिवाइड, वही डिवीजन फॉर्म हो जाता है, फॉल्स सेप्टम बनता है। ये मस्टर्ड आर्जेमोम में पाया जाता है। ठीक है, ये देखो इसमें भी सेप्टम है एक्साइल में। ठीक है, और इसमें भी फॉल सेप्टम बनता है लेकिन कभी कभी बनता है किसमें, पैराइटल में। व्हेन ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, सेप्टा अपसेंट हो तो उसको बोलते हैं फ्री सेंट्रल, एस इन डायंथस एंड प्रिमरोज। अच्छा, इसका ये क्या है, ये है इसका फ्री सेंट्रल का, ये हो गया आपका इसका पैराइटल का। ठीक है ना, ये देखो ये इस पे फॉर्म हो रहे हैं, इससे रिज पे फॉर्म नहीं हो रहा है, आई मीन पेरिफेरल साइड पे हो रहा है। ठीक है, द प्लासेंटेशन इज called free central. In basal placentation, the placenta develops at the base of the ovary and single ovule, इसमें क्या होता है, single ovule attached to it as in sunflower and marigold। इसके बाद बात करें फ्रूट की। Fruit is the characteristic feature of flowering plants. It is matured or ripened ovary, ठीक है, it is matured or ripened ovary developed after fertilization। If a fruit is formed without fertilization of the ovary, उसको क्या बोलते हैं, parthenocarpic fruit। Parthenocarpic is a fruit with seedless ovary। Generally the fruit consists of wall or pericarp and seeds। The pericarp may be dry or fleshy। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp। ठीक है, जो मीजोकार्प होती है कोकोनट में वो फाइबरस होती है, मैंगो और कोकोनट ड्रू फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, दे डेवलप मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरीज एंड आर वन सीडेड। ठीक है, मोनोकॉट है ना, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरी फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल सीडेड हैं। मैंगो द पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एंडो एपिकार्प, थिन एपिकार्प है।
मिडल फ्लैसी एडिबल मीजोकार्प, मैंगो की मिडल जो अपन खाते हैं वो मीजोकार्प होती है, राइट, एडिबल होती है। इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। कोकोनट विच इज ऑल्सो का ड्रूप, इसमें मीजोकार्प कैसी होती है, फाइब्रस, ही बताया था। ये देखो मीजोकार्प, ये देख रहे हैं आपको, जो ये बाहर ये होती है ना कोकोनट में जो अपन निकालते हैं उसको तोड़ने के पहले, वही फाइब्रस होती है, बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। Seed. Ovules after fertilization develops into seed. A seed is made up of seed coat and an embryo. The embryo is made up of a radical and embryonal axis S and 1 S in wheat, maize और 2 S in gram and pea. ठीक है, ये क्या हो गया आपके डाइकॉट हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड कैसा होता है, आउटर में टेस्टा होती है, इनर में टैगमन, हाइलम एक स्कार होता है सीड कोट पर जो कि डेवलपिंग सीड्स के थ्रू अटैच करता है, फ्रूट्स के उसमें अटैच हो जाता है। अबव द हाइलम, हाइलम के जस्ट ऊपर एक पोर होता है, ऊपर जस्ट होता है ना, ऊपर इन द सेंस अपर पार्ट पे नहीं, ऊपर above it is a pore called micropyle, ये respiration में हेल्प करता है। Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and 2 cotyledons. The cotyledons are often fleshy and full of reserve food materials. ये fleshy होती हैं और ये food materials को reserve करती हैं, store करके रखते हैं, right? At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. In some seeds such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization. Food storing tissue and are called endospermic seed, जिनमें endosperm present होता है, such as PBG, ठीक है, PB एंड ग्राम, पेपिनियस फैमिली होती है जो अपनी है ना, फैबेसे, राइट। द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है। मोनोकॉट्स आर द, अच्छा इसका एक कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। ये डायग्राम हो गया सीड कोट, हाइलम, हाइलम के ऊपर माइक्रोपाइल, ठीक है। अब इसका क्या है, एक होता है आपका क्या, दो इसके एक्सेप्शन, एक कैस्टर, कैस्टर एक कैसा है, एंडोस्पर्मिक सीड है, जबकि ये क्या है, ये तो एक सॉरी कैस्टर एक नॉन एंडोस्पर्मिक है या एंडोस्पर्मिक है, बताओ। कैस्टर, कैस्टर कैसा होता है आप बताइए। देखो जनरली मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन ऑर्किड नॉन एंडोस्पर्मिक है। डाइकॉट मैंने बोला था, कैस्टर एक डाइकॉट है लेकिन वो एंडोस्पर्मिक है, एक्सेप्शन हो गया। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर का आउटर एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलेडन कॉल्ड स्कूटेलम, ये देखो स्कूटेलम। अच्छा इसका ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, मतलब कहाँ कौन सी लेयर, स्कूटेलम कॉलिप्टाइल कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, और प्लूमोल इसके नीचे है, फिर रेडिकल है, फिर कॉलियोर्जा है। कॉलिप्टाइल ऊपर है, कॉलिप्टाइल के ऊपर स्कूटेलम है, और सबसे नीचे कॉलियोर्जा है, कॉलिप्टाइल के जस्ट नीचे प्लूमोले है, प्लूमोले के बाद रेडिकल है, कॉलियोर्जा के जस्ट ऊपर रेडिकल है। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है ना। Plumule and radicle enclosed in sheaths which are called coleoptile and coleorrhea respectively. चलिए इसके बाद ये सब टेक्निकल टर्म्स दिए हैं जो कि फ्लोरल, अब जो फैमिलीज दी गई हैं इसमें आपकी 3-4 वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें देखो आपको क्या याद रखना है, इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या क्या हैं, किसमें कैसा वेनेशन है, कैसी लीफ है, उसके बाद फ्लोरेसेंस कैसा है, कैलिक्स में कैसा है, जो फ्लोरा फार्मूलाज दिए हुए हैं ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो डायग्राम, ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। ये अगेन फ्लोरल फार्मूला इसका, ठीक है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट है सब। उसके बाद इसका फ्लोरल फार्मूला हो गया, ये और इसके एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूरे एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल सारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स। और ये सब तो आपको याद कर लेना डायरेक्ट, इसमें समझाना कुछ है नहीं। एंड जो दूसरा PDF डालूंगा उसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था उसके एक्स्ट्रा, वो भी डायरेक्ट लर्न कर लेना। चलिए, थैंक यू।